दोस्तों नमस्कार, घटना चक डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैंने पिछले वीडियो में एक बात बताई थी कि जी का 2026 का जो हमारा इंग्लिश वर्जन है वो मार्केट में आ चुका है और ये वर्जन नया एडिशन पूरे एक साल बाद आया है। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था कि इस किताब को हम बहुत सिंप्लीफाई कर रहे थे। इसके अतिरिक्त इसमें इंफॉर्मेशन को जो प्रेजेंट करने का तरीका पहले था उसमें थोड़ा चेंजेस लेके आए, हम बदलाव लेके आए हैं। इसके अलावा एआई और मानव ह्यूमन इंटेलिजेंस की सहायता से इसको चेक किया गया है ताकि फैक्ट्स में गलतियां बहुत कम। तो एक नया मॉडल है और इस किताब का एक पोर्शन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहले तो आप कवर पेज देख लीजिए, देखा ही होगा आपने, सब कुछ आपको लेटेस्ट अपडेटेड चीज़ें मिलेंगी इसमें। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस किताब का जो पॉलिटी का सेक्शन है वो देख लें, उसके कुछ कंटेंट्स हम देख लेते हैं। हालांकि इसमें क्या क्या कवर किया गया है मैं आपको बता देता हूं। इसमें इंडियन हिस्ट्री में अगर आप जाओगे तो इंडियन हिस्ट्री में जो तीनों हिस्ट्री होती हैं हिस्ट्रीज, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री को भी कवर किया गया है। जब आप ज्योग्राफी में जाओगे तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर किया गया है, जिसमें फिजिकल, जियोमॉर्फोलॉजी वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, कॉन्टिनेंट्स आते हैं। साइंस में आप जाओगे तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो ट्रेडिशनल साइंस होता है वो तो कवर किया गया है। साथ में इन्वायरमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स और मिसलेनियस इतनी चीज़ें कवर की गई हैं। तो हम सबसे पहले अभी हम जाएंगे पॉलिटी के सेक्शन में और उसमें देखेंगे कि चीज़ें कैसे कवर की गई हैं। 2-3-4 पेज मैं आपको दिखाऊंगा और दिखा के ये मेरा मकसद है कि आप इस किताब को देखें और समझें कि कैसे, कितने सरल तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर की। When we are going to talk about the very first chapter of Indian Constitution, and the name of the chapter is Constitutional Development of India. Constitutional Development of India. When we occur the Constitutional Development of India, we start this chapter from the definition of Constitution. What is Constitution? Assume that you are traveling in a bus or train and a person asked about the definition of Constitution. The definition can be presented in two types or two forms. First, in a very complex way, and second, in a very easy and simple way. But you know the fact that simple is always good. Complex things cannot be taken by the people easily. So when we talk about the definition of Constitution, in this book, the definition is given as a constitution is a set of rules and laws used to govern a country. It's a very simpler definition. It's a set of rules and laws used to govern a country. In India, its development began under the East India Company in mid-70s and continued under the direct British rule until independence in 1947. When we talk about the direct British rule, then the Act of 1858, it is indicated by the beginning of crown rule, and it is started after the revolt of 1857. This is a very simple definition of Indian Constitution. And after that, the acts which was made under British Parliamentary Act for Administration of East India Company 1773 to 1853, and in other section, acts passed during Crown Rule, and Crown Rule is started after the revolt of 1857. In this period, there were some important acts like Government of India Act of 1858, Indian Councils Act of 1861,
इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. So the objective of this book is very clear. And what are the objectives? The objectives are content presentation in a very simple way. The nature of content is objective. Objective means ऐसी चीज जो सब्जेक्टिव ना हो. मतलब what I mean to say? I mean to say I will go through an act and you will be knowing that the presentation of this book is very simple. For example, Regulating Act of 1773. We are talking about very first act by East India Company, Regulating Act of 1773. You know very well, when a power is trying to rule in a very unknown place like India, they need rules and regulations. फाइनेंशियल रिलेशन जब शुरू होते हैं तो उसमें रूल रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है. एंड दे हैव प्रेजेंटेड रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट गेन्ड कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी बाय दिस एक्ट. फर्स्ट, द गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. A 4-member executive council was constituted to assist the Governor General of Bengal with a tenure of 5 years. Means you are going through a very simple content. अब इसमें आगे देखिए आप, वारेन हेस्टिंग्स was the first Governor General. His council, काउंसिल में क्या क्या कौन कौन थे? जॉन क्लेवरिंग, जॉन मैनसन, फिलिप फ्रांसिस, रिचर्ड वेरवेल. Under the system, the governors, president and council of Madras and Bombay were subordinated to the Governor General of Bengal. It means the Governor General of Bengal was supreme authority, and the governors of Madras and Bombay were subordinated. आगे, Supreme Court was established under this act. Supreme Court was established under this act in Calcutta 1774, जिसको कोलकाता कहा जाता है. विथ चीफ जस्टिस कौन थे? एलिजा एम्पे. एंड वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिकेट हियर दैट द एग्जाम नेम्स आर आल्सो मेंशन्ड. इसका मतलब है कि इन एग्जाम्स में ये फैक्ट्स पूछे गए हैं. आगे बढ़ते हैं. एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781 की बात करते हैं. देखिए इसने क्या किया? करेक्टेड फ्लॉज इन 1773 एक्ट. यानी 1773 एक्ट में जो फ्लॉज थे, दिस एक्ट हैज करेक्टेड फ्लॉज ऑफ 1773 एक्ट्स. Kolkata government could make laws for Bengal, Bihar and Odisha. Under this act, company servants were now outside the Supreme Court jurisdiction. यानी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में कंपनी सर्वेंट को बाहर कर दिया गया. फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. इसमें क्या है? द ब्रिटिश क्राउन गॉट ग्रेटर पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर्स. ये लाइन बहुत कुछ इंडिकेट करती है. आप ऐसे मानो कि ब्रिटिश क्राउन ने एक कंपनी को छूट दी कि भाई तुम जाओ हिंदुस्तान में बिजनेस करो, और वो कंपनी बिजनेस करते करते उसकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस इतने बढ़ने लगे कि दे वर ट्राइंग टू कंट्रोल इंडिया पॉलिटिकली. और अगर आपने किसी आदमी को भेजा है, अपने ही सबऑर्डिनेट को भेजा है कि भाई जाओ यहां पर शासन चलाओ, रूल करो, लेकिन मेन मकसद व्यापार का होना चाहिए, ट्रेड का होना चाहिए, और वो आदमी भूल कर वहां पॉलिटिकली चीजों को कंट्रोल करने लगे,
देन यू विल बी इनसिक्योर, और आपको ये लगेगा कि ये इसकी पॉलिटिकल एस्पिरेशन तो बढ़ती जा रही है। और इस पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को कम करने के लिए, ये बताने के लिए कि भाई तुम्हारी हैसियत हमारे सबऑर्डिनेट की ही है, इसलिए ज्यादा उड़ो नहीं, कंट्रोल में रहो। और इसको करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लेके आती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। फिर पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल रोल्स वेर सेपरेटेड, कॉल्ड डुअल गवर्नमेंट, डायरकी। In various exams, this question has been asked. Then the starting, the initiation, the beginning of diarchy, by which act? Then you must consider this fact that Pitt's India Act of 1784 mentioned this thing. तो मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है, मैं जो चीज बता रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, एक्ट की चर्चा कर रहा हूं, ये बहुत साफ बात ये है कि हम ये बताना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू प्रेजेंट वेरी सिंपल फैक्ट दैट इन आवर बुक the facts are presented in a very simple way, and presentation in a very simple way is the toughest task actually. कहा जाता है ना, सरल लिखना, सरल पढ़ना, सरल बताना सबसे कठिन है। तो ये चीज आपको बताने का कुछ प्रयास मैं कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल रोल्स वे आर सेपरेटेड, कॉल्ड डुअल, मैंने इसकी चर्चा की। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएटेड फॉर पॉलिटिकल मैटर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स retained trade matter. Company territories were now called British possessions in India. कह रहा हूं ना, कंपनी की जो टेरिटरी होगी वो ब्रिटिश प्रॉपर्टी हो जाएगी इस एक्ट के बाद। मैं कह रहा हूं ना कि इनसिक्योरिटी को दिखाने का एक मामला है। फिर क्राउन रोल आ जाता है। क्राउन रोल में क्या क्या चीज, सॉरी, इंडिया फर्स्ट लॉस्ट गवर्नर जनरल, फिर वायसराय का रूल आ जाता है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव है, इसका शासनकाल है, वारेन हेस्टिंग्स है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है, इसका जो है पूरा ब्यौरा है आपको मिलेगा। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1786 आता है, जिसमें गवर्नर जनरल कुड ओवरराइड हिज काउंसिल इमरजेंसीज। ही वाज आल्सो मेड कमांडर इन चीफ। लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज द फर्स्ट इफेक्टिव रूलर अंडर दिस अरेंजमेंट। मैं ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दिस बुक इज वेरी सिंपल। मैं आपको इस बुक की विशेषता फिर से बताता हूं, और इस मेरे वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि इस किताब में जो कंटेंट प्रेजेंट किया गया उसमें क्या चीजें रखी गई हैं। तो सबसे पहली चीज, कंटेंट की अगर हम चर्चा करें तो कंटेंट बहुत सिंपल फॉर्म में रखे गए हैं, बहुत सिंपल फॉर्म में रखे गए हैं, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, जो फैक्ट्स रखे गए हैं वो लगभग ऑलमोस्ट 99.9% क्या है, करेक्ट है, करेक्ट है। तीसरी चीज, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, मतलब बहुत ज्यादा बल्कि कंटेंट नहीं है, आपके एग्जाम में जो आएगा वही इसमें रखा गया है। चौथी चीज, इस किताब को दो तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप प्री के लेवल पर या वनडे एग्जाम के लेवल पर पढ़ना चाहते हो तो ये इस किताब को आप पढ़ सकते हो, लेकिन रिवीजन के मॉडल में भी इसको इस्तेमाल आप कर सकते हो। अगर आप जैसे मान लो रिवीजन के मॉडल में आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हो, बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, उत्तराखंड पीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, हरियाणा पीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, इस किताब को एज ए रिवीजन मॉडल आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो ये सारी चीज़ें इसकी खासियत हैं। मैं फिर से कहूँगा, जी का 2026 जो इंग्लिश वर्जन है, जी का 2026 इंग्लिश वर्जन किताब मार्केट में आ गई है। आई होप आपको ये किताब अच्छी लगेगी। कोई क्वेरी हो तो आप इस किताब के पीछे एक नंबर दिया गया होगा, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, हमारे ऑफिस में कॉल कर सकते हो। बाकी किसी अन्य वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।